Hello everyone, myself Vaidya Mohini Date from Vishwartha Ayurved Clinic, Pune. Today I am going to take or discuss the topic about the weight gain. Every woman or the girl is concerned about the weight gain nowadays. So I am going to give you the checklist to rule out what are the causes behind that and how can you deal with that. So first cause is diet induced. Some people eat like if they don't want to eat, still they are eating chips, burger, pizza thing while watching movie, while in a stress, while in a working. So this is the wrong habit which are nowadays every woman or the girl is following during their work phase or during their tension like stress phase. So it's a wrong habit. Second one is the frequent eating like they are not eating the sattvic food which are the homely food. They are eating like the outside foods which are like salted more enough to increase the water retention in your body. So the salty food which are eating, they are they are tasty enough, but they are not going to give you health benefit. So this is the thing. And then third one is drinking the carbonated drink. Nowadays it's like trained in every working woman. So carbonated drinks like anything like carbonated which contain more carbonated in it. So that is also going to increase your weight, and it also impact your mental state. This is also the one of the cause. And the fourth and most important thing is if you are not hungry and the previous food is not digested, still you are going to eat because it's time to eat. So some have the work profile. So अभी 1 PM हो गया है तो I need to eat because after that I have the meat. But if your previous food is not digested, so don't eat at that time. For that the previous food is not digested till 1 PM. It's also the another concern or another topic, because if your metabolism is not right, then you are not going to have the feeling of that hunger. So it should be hunger at like 9 or 8 PM while awaking. So you should follow that. After that, after the diet, you are following the wrong lifestyle, like you are awaking late, then sleeping at late night because of some other issues like discussion or gossiping or the movie watching or anything विच हैम्पर यूर स्लीप हैबिट. देन लाइक 6 आवर 7 आवर का स्लीप नहीं हो रहा है, उसके बाद जल्दी से वर्क पे जाना है इसीलिए जल्दी जल्दी उठ रहे हैं. सो योर मेटाबॉलिज्म गोइंग टू हैम्पर. एंड अर्ली अवेक नहीं हो रहा है तो जब कफ का काल आ जाता है, आयुर्वेद में जो बोलते हैं कि आप अगर सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो तो कफ का काल आ गया है. तो उसमें अगर आप उठ रहे हो तो उस टाइम आपको भूख नहीं लगेगी. जब आप जल्दी उठते हो तो आपके मलमूत्रादि क्रिया सब अच्छे से हो रहा है, तो उसके बाद आपको भूख भी लगेगी. At that time you should drink like lemon tea or lemon water you can drink at that time, and then follow some yoga steps or any exercise you want to do at that time. And then if you are hungry, if you feel hungry, then at that time you should eat the food which are prepared at your home, which are useful for your body, like at according to your location, according to your city. If you are eating that food only, like South Indian eat idli, if Maharashtrian eat chapati, so that food is sattvic for you and you should eat that only if you are hungry. Only then. If you are not hungry and you want to eat because it's time to eat, so it's not the right thing to do. So then third one is एक्सेस, मतलब जागरण हो रहा है बहुत ज़्यादा. जो मैंने बोला कि रात में मूवी देखने के टाइम में जब भी हम लोग ज़्यादा अवेक हो रहे हैं तो नींद नहीं होती है, उस टाइम भी आपको भूख लगती है. तो वो भूख लगना इज़ नॉट राइट. मतलब हम बोलते हैं कि जैसे भूख लगी तो मैंने खा लिया, तो वो भूख लगती है क्योंकि आपका सोने के टाइम में आपने जागरण किया, उस टाइम आपको भूख लगी है. तो आप क्या करते हो उस टाइम? आप चपाती राइस नहीं खाते हो, आप खाते हो सॉल्टेड चिप्स वगैरह ऐसे थिंग जो भी अच्छी नहीं है आपके लिए. देन थर्ड फैक्टर इज स्ट्रेस इंड्यूस. स्ट्रेस में जब रहता है इंसान तो कुछ भी खाता है तो उसके बॉडी को लगता नहीं है. मन स्वास्थ्य भी मेंटेन है, जैसे हमने मेंटेन रहना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके बॉडी में भी. कि जैसे आप अगर स्ट्रेस में हैं, आप रो रहे हैं, इस चीज़ में आप क्या खा रहे हो ये बॉडी को नहीं पता चल रहा है और आप खाते जा रहे हो, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, और आप इस टाइम भी सॉल्टेड और स्पाइसी चीज़ें खा रहे हो, तो इससे भी ज़्यादा आपका वेट गेन होगा, ना कि वेट कम होगा. उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि डाइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, फिर हमारा जो रूटीन होता है, जो मैंने बोला कि
जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में टाइम हो गया इसलिए हम खाते हैं, वो चीज़ गलत होती है। उसके बाद में स्ट्रेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम सोचेंगे कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आपने उठने के बाद लेमन टी या लेमन वाटर प्रीफर कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। तो आपने उसमें क्या खाना चाहिए। इफ़ यू आर महाराष्ट्रियन सो ईट चपाती, इफ़ यू आर साउथ इंडियन ईट इडली, बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन एंड वो आपके लिए भी सात्विय है, आपके लिए सही रहेगा। जैसे महाराष्ट्रियन बंदे ने बोला कि मैं भी इडली खाऊंगा, तो उसके लिए वो साथ में नहीं है, तो उसको फर्मेंटेड डाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी भूख मतलब मांद्य हो सकती है, उसको भूख नहीं लगेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर साउथ इंडियन बंदे ने उठ के अगर इडली भी खा ली तो उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो बचपन से वही रूटीन फॉलो करता है। तो ऐसा डाइट जो आपके घर में और आप बचपन से खा रहे हो, लेकिन जो गलत ना हो। जैसे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप बचपन से चिप्स ही खा रहे हो मॉर्निंग में उठने के बाद तो वो साथ में होगा, नहीं, वो साथ में नहीं होगा। जो सात्विक फूड घर में बनता है वो आपके लिए सात्विक होता है। तो ऐसी चीज़ें आप मॉर्निंग में उठने के बाद खाइए। जैसे महाराष्ट्र के लोगों के बारे में मुझे बोलना होगा तो एक चपाती खा ली, और वो भी काऊ घी के साथ। घी से वज़न नहीं बढ़ता है, ये बहुत बड़ा ये बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों का कि घी से वज़न बढ़ता है, तो नहीं बढ़ता है। काऊ घी जो रहता है, आप गिर गए जो अभी सुना होगा, या तो फिर आपको जो भी काऊ घी का मिल रहा है, अगर घृत मिल रहा है, तो वो आप चपाती के साथ, ड्राई चपाती नहीं खाते हुए वो चपाती और जो भी वेजेस आपके साथ बन रहे हैं वो आप खा सकते हैं मॉर्निंग में। देन आपको अगर लंच करना है तो उस टाइम आपको डाइट में सलाद भी ऐड करना चाहिए। ये फाइबरस जो सलाद रहते हैं, फाइबरस थिंग जो रहते हैं, वो क्यों ऐड करने हैं, तो उससे आपका इंटेस्टाइन का फ्लोरा अच्छे से मेंटेन होगा, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ें रहती है, जो स्टिकी चीज़ें आप खाते हो, जैसे ऑयली सब्जी ज़्यादा खा रहे हो या जो चीज़ें रहती है, उसको स्क्रैप करके बाहर निकालने का काम जो होता है वो सलाद अच्छे से करता है। तो इसमें जो टोमेटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, फिर कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डाइट में ऐड करनी चाहिए। ना कि चपाती फटाफट सब्जी के साथ खा ली तो हो गया, वैसा नहीं करना चाहिए। और अगर सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे खाना नहीं करना चाहिए, खाना स्किप नहीं करना है आपको। अगर खाना स्किप करना है तो मतलब आपने आयुर्वेद में भी बोला है कि एक टाइम का खाना, तो ये भी फॉलो करते हैं लोग। हमने वृद्धावस्था में बोला है, जैसे वृद्धावस्था में ग्रंथों में दिया है कि आपको डाइजेशन मेटाबॉलिज्म रेट कम रहता है, तो उस टाइम 1 टाइम खाना चाहिए, 1 टाइम नहीं खाना चाहिए। तो उस टाइम क्यों बोला है वैसा, कि उसका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, तो उसको प्रीवियस वाला फूड ही नहीं पचा है, तो और मत खाइए, तो उससे आपकी हेल्थ इशू होंगे। तो अभी यंगस्टर में अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 टाइम का खाना चाहिए, तो उसमें क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हेवी खा रहे हो, कभी रेस्टोरेंट में खा लिया, कुछ घर में अच्छा फेस्टिवल है तो आपने खा लिया, तो मॉर्निंग में आपको वेट गेन का कंसर्न है, तो मॉर्निंग में आपने ये खा लिया और वेट गेन का कंसर्न है, तो आप इवनिंग में डाइट स्किप नहीं करते हुए फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ये चीज़ें आप लिक्विड डाइट पे जा सकते हैं, ना कि आप पूरा ही बंद कीजिए। फिर थर्ड थिंग हो गया, मुझे इसमें ज़्यादा फोकस करने की इच्छा हो रही है कि जैसे लोग जिम जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, आपको स्प्राउट्स ज़्यादा खाने चाहिए, इससे वात ही बढ़ेगा। आपको डेली स्प्राउट्स नहीं खाना है, आपको स्प्राउट्स खाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मूंग ये चना वना नहीं खाना है, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली वही चीज़ें ड्राई खा रहे हो, स्प्राउट्स खा रहे हो, तो इससे भी वात बढ़ता है और बाकी दोषों को भी इम्पैक्ट करता है, जो भी गृहिणी को इम्पैक्ट करेगा। एंड देन अगेन वेट गेन से वेट कम नहीं होगा। जिम में ऐसा पाया जाता है कि जिम में जब तक हो तब तक वज़न कम होता है या तो मेंटेन रहता है, उसके बाद बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि आप वहाँ पे इतना स्टर्नस एक्सरसाइज करते हो, तो वहाँ पे आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो वो भी जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो सही बोलते हैं कि हम लोगों को प्रोटीन रिप्लेस करना चाहिए, तो प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा जाना चाहिए, पनीर क्यूब्स खाना चाहिए, स्प्राउट्स ज़्यादा खाने चाहिए। लेकिन आप रूटीन में वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है और आप फिर भी वही डाइट फॉलो करे जा रहे हो, तो वो एक्यूमुलेट होगा, ना कि डाइजेस्ट होगा। तो आपको अगर रूटीन में सेट करना है तो आप ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे ज़्यादा अति आयाम ना हो, जो आपको बॉडी को इम्पैक्ट ना करे। खाना खाने के बाद जिम जा रहे हो तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोला। आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप योगा फॉलो करिए, यही नहीं बोल रही हूँ, आप योगा फॉलो करेंगे तो वेल एंड गुड, एनी पोजिशन एनी पोस्चर। बट अगर आपको जिम भी फॉलो करना है तो आप जो डाइट वहाँ पे फॉलो कर रहे हो वो जिम बंद करने के बाद नहीं कर सकते हो। और वहाँ पे जो डाइट फॉलो कर रहे हो तो उससे मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, मसल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो प्रोटीन डाइट
ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आपको अगर आप एक वुमन हो, आप एक लेडी हो, तो आपको अगर वो जो बिल्ट है अपना वो वैसे ही मेंटेन करके रखना है ना, रैदर देन मस्कुलर बनना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको नो डाउट वो ही करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर रूटीन में मतलब नहीं चाहते हो कि मस्कुलर दिखो, ऐसे दिखो, तो इसके लिए आपको उतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज वहाँ पे कर रहे हो और मैंने बोला कि नहीं आपको स्प्राउट्स नहीं खाने, प्रोटीन नहीं खाने, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो क्या होगा कि आपको थकावट होगी यार, मसल डैमेज हो सकते हैं। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हो, अति व्यायाम नहीं कर रहे हो, योगा के पोस्चर फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमने जो जैसे बोला कि एक और टॉपिक था कि प्रेगनेंसी या तो पोस्टमार्टम। बहुत सारी महिलाएं कंसर्न होती है कि मेरा प्रेगनेंसी में बहुत वेट बढ़ गया, अभी तो मैं डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी खाना नहीं खाने वाली। इस चीज़ से क्या होगा कि मिल्क सिक्रेशन कम होगा, बेबी को मिल्क नहीं मिलेगा, एंड फिर वो आप उसको फीडिंग नहीं कर पाते हो, फिर मिल्क नहीं आ रहा, ये वाली चीज़ें कंप्लेंट चालू हो जाती। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका वेट कम हो, लेकिन आप पे डिपेंडेंसी है, आपको आपके बेबी को भी फीड करना है। आप अच्छे से डाइट और सात्विक खाना या तो फिर हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो उसको बेबी को भी नहीं मिलेगा। जैसे आपने रुक्ष डाइट चालू कर दिया और सोचा कि मुझे वेट अभी फटाफट कम करना है, तो उससे क्या होगा कि आपको बेबी को फीडिंग नहीं कर पाओगे, एंड टॉप फीड आपको चालू करना पड़ेगा, एंड उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने वाली। आपको अगर आपके बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है तो आपको खाना ही पड़ेगा, और वो भी हेल्दी डाइट। इसके बाद जब ये अपना फीडिंग बंद हो जाता है, उसके बाद आप नो डाउट आप उसके बारे में सोचिए कि मुझे वेट कैसे कम करना है। एंड ट्रस्ट मी, वेट कम होता है फीडिंग बंद करने के बाद भी। लोग ये भी गलत फहमी लेके चलते हैं कि फीडिंग बंद कर दिया तो उसके बाद भी मेरा फटाफट वजन कम ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे फीडिंग या डिपेंडेंसी बंद हो जाए तो आप अपने बॉडी के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन या जो चीज़ें आप फॉलो करना चाहते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पे अगर कोई डिपेंडेंट है, अगर उसको आपको फीड करना है तो आपको भी उतना खाना पड़ेगा। आप 2 क्वांटिटी में खा रहे हो तो उसको 1 पोर्शन उसको जाएगा, लेकिन आप हाफ ही खा रहे हो तो उसको आप सोच लीजिए आप उसको कितना जाएगा और आपको कितना जाएगा। तो मेरी महिला से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वज़न कम करना है तो फीडिंग के बाद सोचिए, और ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा खाइए उस टाइम भी। जैसे बहुत सारी मतलब पेशेंट मेरी बोलती है कि डिलीवरी के बाद मैं घी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि वज़न बढ़ेगा वगैरह थिंग। ऐसा नहीं होता है, आप जितना ड्राई खाओगे बच्चे के पेट में भी उतना ज़्यादा ये जैसे फुलनेस ऑफ एब्डामेन हो गया, उसको भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होगी, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ठंडी के सीज़न में द्राक्षा नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए होती है, तो ये आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी जब अगर आप पोस्टमार्टम वूमन है तो। उसके बाद आपको एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार ऐड कर सकते हैं। अगर आपको LACS हुआ है तो एटलीस्ट 5 मंथ्स के बाद आप 6 महीने के बाद जैसे सूर्य नमस्कार के कुछ पोस्चर कर लो, 6 नहीं कर पाए हो तो 3 कर लो, फिर पश्चिमोत्तानासन हो गया, फिर अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती जैसे प्राणायाम ये हो गए, आसन हो गए। ये सारी चीज़ें करने से भी आपका वेट कम होगा। फिर आप अपना वॉकिंग भी बढ़ा सकते हो, इससे भी आपका फैट बर्न होगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपको कब करनी है, आपको ये फीडिंग ख़त्म करने के बाद करनी है आप। और ये भी चीज़ है कि जैसे डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी जो रहती है महिलाओं की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि हमने एक बेबी को डिलीवर करा है तो हमारी बॉडी में जो भी वात बढ़ा है उससे हमारी बॉडी और ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। अगर हम उसको जैसे ऑयलिंग नहीं करेंगे तो और ज़्यादा रुक्षता आएगी और उससे और ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप होंगे। ये हमें अभी के अभी नहीं पता चलता है, ये हम लोगों को 30-40 ईयर्स जब ही हो जाते हैं उसके बाद पता चलती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी तो रहती है 30 ईयर्स की। उसके बाद हम लोगों को ये वात के डिसऑर्डर हो गया, बहुत ज़्यादा बैकएक होता है, किसी को नी जॉइंट का पेन होता है, सिर दर्द चालू हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपने सूतिका में जो डाइट फॉलो नहीं करा है उसके वजह से होती है। तो ये चीज़ें भी आपको वेट गेन या वेट लॉस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आप मतलब डिलीवरी के बाद डाइट चेंज ज़रूर कीजिए, लेकिन आप मतलब जैसे पूरा बंद मत कीजिए या तो ड्राई मत खाना चालू कीजिए, उससे आपको बाकी की तकलीफ भी बढ़ सकती है। और जो स्नेहन सेदन जो बोला है वो तो आपको फॉलो करना है, ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज का जो मैंने बोला ये सारे आसन्स हो गए, और ज़्यादा आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर को प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर सेल्फ, मतलब आपके इंडिविजुअल रिलेटेड, जैसे प्रकृति और आपका करंट स्टेटस देख के वो बंदे को देख के एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नाड़ी परीक्षा करके अच्छे से बता पाएगा कि आपको क्या कम खाना है,
कौन सी एक्सरसाइज आप अभी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ सिचुएशन, तो वो आप पक्का कीजिए। और डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे चैनल्स को देख के सर्च करके ऐसा मत कीजिए। प्रॉपर एक प्रैक्टिशनर को आप कंसल्ट कीजिए उसके लिए, और उसके बाद ही आप अपना डाइट चेंजेस कर लीजिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी सर्च कर ले वेट गेन में क्या चीज़ें इम्पैक्ट करी, तो हम लोग खा लेते हैं फटाफट या तो कर लेते हैं। उस चीज़ों से अगर फीडिंग मदर है तो बेबी को भी तकलीफ़ हो सकती है, तो वो चीज़ें एटलीस्ट फीडिंग मदर तो नहीं करे। बाकी की जो लोग हैं, जो है वुमेंस है, उनको एक्सरसाइज फॉलो करनी है और स्ट्रेस कम रखना है, अपना सात्विक डाइट, अपना घर का घर खाना है। कोई डाइट में रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, बट डाइट रेस्ट्रिक्शन इतना ही है बस कि सॉल्ट आप जितना खाओगे उतना ज़्यादा आपका वेट गेन होता है। जैसे सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन पावर ज़्यादा होता है, वो पानी पकड़ के रखता है, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा। तो इसलिए आप जितना सॉल्ट कम खा रहे हो उतना कीजिए। फिर आपने अगर चाहते हो तो ऑयल में भी रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, लेकिन घी से वज़न में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है, उल्टा वो आपके बॉडी में जो ड्राइनेस रहता है वो कवर कर देता है। और जो इंटेस्टाइन में भी फ्लोरा ड्राई हो चुका है, उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन वाली जैसी चीज़ें होती है, वो भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ये आपके बॉडी में ओवरऑल स्किन टेक्सचर के लिए भी अच्छा होता है। तो आप घी खाइए, लेकिन ऑयल और ये जो बोल रहा है सॉल्ट, उसमें आप रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा, ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इसमें ज़्यादा बोलने जाए तो एक पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग फिर से मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। आपको और ज़्यादा डाइट मतलब क्या खाना है क्या नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो मैं आपके अकॉर्डिंग टू भी आपको आपका डाइट बता सकती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके अकॉर्डिंग टू आपका डाइट सेट करके भी दे सकती हूँ, और आपके अकॉर्डिंग टू आपका जो रूटीन है, आप जो लोकेशन में रहते हो उसके अकॉर्डिंग टू भी मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि कौन सी सब्जी, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या खाना है, और कौन सी एक्सरसाइज स्पेसिफिकली आपको ये स्टेज में करनी है, तो आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ना कि ऐसे उबली हुई सब्जियां खा ली तो वेट कम होगा, वैसा मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी कैंसर कॉजिंग बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए। इंडिया में जो पकी हुई सब्जियां रहती है, जो हम लोग सब पकी हुई जो खाना खाते, उससे हमारे इधर कैंसर का जो बोलते हैं कि प्रमाण जो है वो भी कम दिखाई देता है, रैदर देन अदर कंट्री जहाँ पे उबली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, उसमें ये प्रमाण ज़्यादा मिला है। ये भी एक रिसर्च हुआ है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि आप ये मत कीजिए कि मैंने उबली हुई चीज़ें खाई है, अभी मेरे को ऑयल नहीं खाना, ये नहीं खाना है, ऐसा करके मत खाइए। आपका जो भी रूटीन है उसमें आप अपना सात्विक डाइट मेंटेन कीजिए, बाहर का आउटसाइड का फूड कम कीजिए। ब्रेकफास्ट में आप अगर पोहा डेली खाते हो तो वो पोहा मत खाइए, उपमा खाइए, सूजी प्रीफर कर सकते हैं आप, चपाती का व्हीट फ्लोर के चपाती खा सकते हैं। जो साउथ इंडियन बोल रहे हैं वो इडली खा सकते हैं। तो उनका अगर उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, बचपन से वो खा रहे, तो उनको पचेगा। लेकिन अगर महाराष्ट्रियन बंदे ने खा ली इडली तो उसको दोपहर तक नहीं लगने वाली भूख। तो ये चीज़ें आप दूसरों के साथ कंपेयर ना करके हुए अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग टू, अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग टू, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग टू कीजिए। इसके लिए आप अपने आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कभी भी पर्सनल कॉल कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।